السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری پیروی اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو توحید کی دعوت لے کے بھیجا۔ کس کی؟ توحید کی دعوت لے کے بھیجا، اور بشیرن و نذیرن، اور ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ پیغمبروں کو چلہ اور 4 مہینے لگانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ چلہ 4 مہینے کے ہم لوگ وہ بتاتے ہیں مسجدوں کے اندر، کیونکہ پیغمبروں والا کام ہے۔ پیغمبروں کے پاس یہی تو کام بچا ہے کہ وہ چلہ لگائیں گے اور 4 مہینے لگائیں گے۔ ہاں، تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہم ہی سب لوگوں کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بنا کر کے کرنا ہے، ساتھ میں 10 آدمی جائیں، 15 آدمی جائیں، 20 آدمی جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو ایک آیت بھی یاد ہے، ایک حدیث بھی یاد ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے اپنے۔ بلغوا انی ولو آیا، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ آپ کو ایک بھی آیت یاد ہو، ایک بھی آپ کو سورت یاد ہو، آپ دوسروں تک پہنچائیے، نہ کہ آپ ٹولیوں میں جائیے، مطلب اپنے گھر میں آپ کے کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہ ہمارے یہاں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لیکن تبلیغ کا کام ضرور ہر انسان کو کرنا ہے۔ اگر جس کو بھی ایک آیت بھی یاد ہے، یا ایک سورت بھی یاد ہے، یا قرآن کی کوئی بھی چیز تفسیر ٹرانسلیٹ یاد ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ایک وہ بنا لیا، ٹارگٹ بنا لیا، نہیں سب جائیں گے، ساتھ میں سب مل کے جائیں گے، اور اپنے چاہے گھر میں کوئی پریشان ہے، دقت ہے، لیکن پھر بھی ہم جا رہے ہیں۔ ایسا ہمارے یہاں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوگا، ہمارے نبی نے کہیں نہیں کہا ہے ایسا۔ تو اور ہم مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہم ایسی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو سب سے ضروری ہے اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اور ہم اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنے بزرگوں سے بہت محبت تھی۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ودا، سوا، یعوقا، یعوسا، نصرہ، ان سے بہت محبت تھی۔ آخر میں اتنی محبت میں اتنے پاگل ہوئے، انہی کی عبادت کرنے لگے، انہی کا بت بنا کر کے اور انہی کی پوجا کرنے لگے۔ اور ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بزرگوں سے محبت جوڑا جا رہا ہے۔ جو بزرگوں سے جب محبت ہوتی ہے، پھر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، پھر بزرگوں کے پیچھے چلنے لگتا ہے کہ یہ بزرگ ہی ہے میرا حاجت رواں مشکل کشا بت ہے، جبکہ حاجت رواں مشکل کشا اللہ ہے۔ کوئی بھی، ایون نبی بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو صرف ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو۔ اللہ نے جو ان کو اوپر پیغام بھیجا ہے، اپنا قرآن بھیجا ہے، تو اس کا لوگوں تک پہنچائیں، اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے آئے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، اور ڈرانے والا اور خوشخبری والا سنا کے بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جنت کی خوشخبری اور دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی کہانیاں اور اب دھیرے دھیرے یہ ہوتا جا رہا ہے، جو بزرگوں کی کہانیاں آدمی سنتا ہے، تو ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ میرے بزرگ تو بھائی ایک رات میں قرآن پڑھتے ختم کر لیتے تھے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے بزرگ تو اس سے بھی زیادہ تھے، میرے بزرگ تو ایک رات میں 2 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ وہاں تو کمپٹیشن چل رہا ہے یہ بزرگوں کا، یہ میرے بزرگ تو یوں کرتے تھے، ایک ٹانگ اٹھا کر کے پوری رات پڑھتے تھے، کہ میرے بزرگ تو ہوا میں پڑھتے تھے۔ بھائی یہ ہمارے نبی کا عمل ہے یہ ہمارے نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے اپنے؟ بھائی ہمارے نبی کیا بہترین نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ بہترین نمونہ نہیں ہیں؟ کہ ہم کیوں بزرگوں کی کہانیاں بتا رہے ہیں؟ اور وہی حال ہو رہا ہے ہمارا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ بھائی پوری دنیا میں جو ذلت، رسوائی، جو تباہی ہے، وہ ہمارے یہی تو اعمال ہیں اپنا۔ بھئی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہم اللہ اور ہم خود اپنی طرف سے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں، اور بزرگوں سے جوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بھائی دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگوں کے ساتھ، بھائی آج 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ لاکھوں مدرسے ہیں، اور تبلیغی جماعت بھی کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے، تو پھر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ سدھار کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ بھائی اتنا تو سدھار ہونا چاہیے لوگوں کے اندر،
कि मस्जिद तो भरी रहनी चाहिए, मस्जिद में फिर भी वीरान है अपना। तो इसका मतलब सब दुकानें चल रही हैं कि आप हमें समझते रहो और हमारा कौरमा बिरयानी नहारी खिलाते रहो और अपने चाहे नमाज़ पढ़ो मत पढ़ो, कोई फिक्र नहीं है। गरीब आदमियों के लिए फतवे अलग हैं, अमीर आदमियों के लिए फतवे अलग हैं। अब जाहिर सी बात है, उनसे पैसा लेना है तो उनके लिए कोई फतवा नहीं है। वो अगर उल्टा सीधा भी कर रहे हैं ना, ठीक है साहब अपने करिए, बस हमें देते रहिए, समझते रहिए अपने। तो बर्बादी तो होनी है, तबाही तो होनी है अपने। जो आज भी अच्छे लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि मुँह उठा करके किसी के यहाँ भी खाने चले जाएँ, किसी के यहाँ भी दावत में चले जाएँ, वो जानते हैं अपने क्योंकि कौन किसके हलाल है और किसके हराम में क्या चल रहा है अपने। तो इसलिए बहुत से तो बहुत कम जाते हैं, जाती नहीं है किसी का दावत खाने, किसके यहाँ कैसा है क्या माहौल है। भाई आजकल शादियों में क्या क्या नहीं हो रहा है, दुनिया भर के खुराफातें जो हो रही हैं, दुनिया भर की रस्में हो रही हैं, मेहंदी फलाने की रस्म, इसकी रस्म उसकी रस्म, तो वो इस सीधे मना ही कर देते हैं कि आप लोग इससे बाद आओगे नहीं तो इसका मतलब मैं आ ही नहीं पाऊँगा। तो आज भी अच्छे लोग ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन 1-8% सैकड़ों हज़ारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई भी खुराफात हो रही होगी तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी बिल्कुल नहीं आएंगे। बेपर्दगी बेशर्मी बिहाई हो रही होगी तो हम नहीं आएंगे। लेकिन वो ऐसी शादी बहुत कम होती हैं, सैकड़ों में 1-8 शादियाँ ऐसी होती हैं जिनके यहाँ ये सब चीज़ें का लिहाज रखा जाता है। और बहुत से 1-8 आदमी ऐसा होता है जो आलिमों में मुफ्तियों में अंदर नहीं जाता, लेकिन अमल ही नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं अमल अपने। जहाँ चाहे हम दावत में चले गए, जहाँ पर चाहे खुराफात हो रही है कुछ और ना टोक रहे हैं, बोल भी नहीं रहे। अब आदमी कम से कम अगर कोई खुराफात हो रही है, कोई बुराई हो रही है तो कम बोले तो सही, आवाज़ तो उठाए। भाई आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आपको अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, मालूमात तो आपको ये कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, और आप फिर भी जा करके आँखें बंद करके आप दावत खा के चले आ रहे हैं और आप रोक नहीं रहे, तो अल्लाह का अज़ाब तो आएगा ही आएगा। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि बुज़ुर्गों की कहानियाँ ना सुन के अल्लाह की जो किताब है उसको रस्सी से मत पकड़, उसका अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह का जो लेटर है ये कुरान, ये हम सब लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए लेटर है ये अल्लाह का। कुरान अल्लाह का लेटर है ये, इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो इसको और इस पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि मेरे मोमिन बंदे वो हैं मेरी आयतों पे गौर व फिक्र करते हैं और रोते हैं और सिजदे में गिर पड़ते हैं। मेरे मोमिन बंदे वो हैं। आधे तो कुरान ही नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो यालमुन तालुमुन करते हैं 50%, और 50% में भी क्या नाम है 45% जो यालमुन तालुमुन करते हैं, और उसके बाद में 5% ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, उसमें जो समझते हैं तो वो अमल नहीं करते हैं। एक आध आदमी रह जाता है सैकड़ों में जो आदमी समझ भी रहा है और अमल भी कर रहा है। हम लोगों को सबको दुनिया से मोहब्बत है ना, प्यारे नबी तो पेट में पत्थर बांधे फिर रहे हैं, और हमें चाहिए और हल मिन मजीद, और चाहिए दुनिया। हमने एक प्लॉट खरीद लिया तो दूसरा खरीदना है, दूसरा खरीद लिया तो तीसरा खरीदना है, ये ज़मीन खरीद ली तो वो ज़मीन खरीद ली, ये कोठी बना ली तो दूसरी कोठी चाहिए। तो हम लोग उनका वो बेचारा होगा मतलब 3 दिन लगातार कभी चूल्हा नहीं जलता था। तो ये तो हम लोगों का हाल है। तो हम लोग कहाँ अमल कर रहे हैं और दुनिया को सुना रहे हैं। अब हदीसें और कुरान तो हमारे सुनाने के लिए हैं लोगों को, मतलब अमल के लिए नहीं है। दूसरों में कि भाई बहुत बड़ा अच्छा आदमी है इसलिए नहीं है। भाई अमल करो। लोगों पे असर क्यों नहीं हो रहा है? लोगों में असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अमल से खाली हैं। खाली मस्जिदों में तकरीर करने से लोगों में सुधार नहीं होने पाता। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी तकरीर सुन कौन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं? सिर्फ 1% लोग आपकी तकरीर सुनते हैं। और तफसीर तकरीर जो भी है नहीं, क्या कुरान का दर्स हो रहा है जो भी है, सब 1%, बल्कि 1% से कम ही मैं समझता हूँ लोग बार सुनते हैं। भाई जो लोग नमाज़ पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं तो उन तक कैसे पहुँचोगे, उन तक उनको कैसे लाओगे? और तो मस्जिदों में बैठने से नहीं होने वाला। अपने भाई बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे नबी मस्जिद में बैठे रहते, वही आती रहती, मैं पर ही लोगों को सुनाते रहते, हो जाता कामयाब, पहुँच जाता यहाँ तक। दिन कभी नहीं पहुँचता। हम लोगों को बस अपना एक मस्जिद तक सिमट के रह गए, ना तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई हम दीन को नाफिज करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मेहनत करिए। हमने अल्लाह ने पैसा दिया है तो हम भी कोठी बनाने में लग गए, हम अल्लाह के दीन को नाफिज करने में नहीं लगे।
अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है, भाई ठीक है, दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, आपने मेहनत करी, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, तो नमाज करी, आपने अमल क्या करा, अब कौन सा अच्छा काम करा, अल्लाह के दीन को नाफिज करा आपने, क्या तौहीद की दावत दी आपने। अब तो अगर कोई कुछ बुराइयाँ भी हो रही हैं, ठीक है, चलता है, चलता खुलता कुछ नहीं है इस्लाम के अंदर। आप लेकिन ये मैं कहूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका मतलब डर है, अल्लाह का डर नहीं है आपको। आपको डरेंगे मतलब जो है कहीं आप लोग आपको वो ना करें, तंग ना करें, परेशान ना करें। अरे हमारे नबी ने पत्थर खाए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए थे तबलीग के लिए, तो पत्थर मारे थे, पैर जख्मी हो गया था मेरे आका का अपने। तो हम लोग तो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कोई वो कुछ ना कहते, भाई आप क्यों डर रहे हो, अल्लाह की तौहीद के लिए लोगों ने जाने दी हैं अपने। लेकिन हम लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना तो चलता है। इस्लाम में नहीं चलता मेरे भाई, नहीं चलता। इस्लाम के अंदर सच्ची बात बोलो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलो अनफुसकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीना इन यकुन गनियन फ़क़ीरन वल्लाहु औला बिहिमा वला तत्तबिल हावा अन तादिलू इन तलो तुरिदू इन्नल्लाहा बिमा तामलूना ख़बीरा। अल्लाह ताला कुरान में आले इमरान आयत नंबर 135 में कह रहा है, सच्ची गवाही दो, सच्ची हक बात की गवाही दो, डरो मत, अल्लाह से डरो। इसमें अल्लाह ताला ये भी कह रहा है, तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारे माँ बाप का नुकसान हो, तुम्हारे घर वालों का नुकसान हो, तुम्हारे पूरे ख़ानदान का नुकसान हो, लेकिन डरो मत, हक बात बोलो, सही बात बोलो। अल्लाह सच्चे लोगों को पसंद करता है, अल्लाह ताला ने सच्चे लोगों को पसंद करा भी है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी तराजू कायम कर देगा। वस्समा रफ़ा वज़ल मीज़ान, अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा। अल्लाह तनको फिल मीज़ान, और तोलने में हद से तजावुज़ मत करो। व अक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, तो इसलिए इंसाफ के साथ सही सही तोलो। तो अल्लाह ताला तो इंसाफ पसंद करता है, इंसाफ। लेकिन हम लोग पता नहीं क्या हम लोगों के अंदर दिमागों में बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। और मस्जिदों के अंदर ना तो सही हदीसें पढ़ाई जा रही हैं, अब फ़ज़ाइल अमाल दुनिया भर के अंदर, उसके अंदर खुराफातें हैं, दुनिया भर की ज़ईफ़ हदीसें, दुनिया भर की मौजू हदीसें हैं, लेकिन उनको बड़े धड़ल्ले से बताया जाता है। और ना भाई क्या हमारे असलाफ जो हैं, जो हमारे अकाबिर हैं, तो हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ करते थे काम। हमारे प्यारे नबी का तो फरमान ये है कि अपने तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे बच्चों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, मेहमानों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। अब आप रात भर इबादत करोगे तो अपने मेहमानों का ख्याल रख लोगे, दिन में सो सको। 3 साहबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। तो आपने उनसे पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अमल मामूलात क्या हैं? उन्होंने क्या ऐसे थे मामूलात ने बताया। उनके अरे वो तो बख्शे आए हैं, और मैं तो ऐसा करूँगा, रात भर इबादत करूँगा और दिन में रोज़ा रखूँगा। एक ने कहा मैं दिन में रोज़ा रखूँगा, और तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुँची तो आपने उन तीनों को बुलवाया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, तुम सबसे ज़्यादा डरता हूँ मैं अल्लाह ताला से। हमने मैं रोज़े रखता भी हूँ, नफली रोज़ों की बात है, फ़र्ज़ तो करना ही करना है, सबको करना है, वो तो किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे औरत हो या मर्द हो, फ़र्ज़ तो सबको निभाना है। लेकिन अब नफली रोज़ों का मैं रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि रात भर अपना खड़ा रहूँ, रात भर इबादत करता हूँ, मेरा कोई अमल नहीं है ऐसा रात भर। हाँ, तहज्जुद में उठता हूँ सुबह के वक्त, अपनी इबादत करता हूँ अपना। ऐसा नहीं है रात भर के हमने इमामों का बना रखा है कि हमारे 40 साल तक एक वजू से पढ़ते रहे नमाज, या अपने 40 साल तक इबादत करते रहे पूरी रात। तो ऐसा हमारे नबी का अमल नहीं है। और हमेशा रोज़े रखो, हमारे नबी का अमल नहीं है। हमारे हदीस तो ये है कि जिसने हमेशा रोज़े रखे 12 महीने, उसने रोज़ा ही नहीं रखा, मना है उसके लिए। अब सही हदीस बता रहा हूँ ये, जिसने 12 महीने रोज़े रखे उसने रोज़ा ही नहीं रखा। रोज़े रखने ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, अगर अब बीच में अगर नफली रोज़ा रखता है, अपने महीने में 3 दिन 13, 14, 15 या पीर का रोज़ा रखता है, जुमरात का रोज़ा रखता है, सही है। लेकिन 12 महीने रोज़े का हमारे कोई तसव्वुर नहीं है। और एक साहबी ने कहा शादी नहीं करूँगा, तो वो हमारे नबी का अमल है। हमारे नबी ने शादियाँ करी हैं, 11 शादियाँ करी हैं, शादियाँ भी करी हैं, बच्चे भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, सारी चीज़ें। ये तो हमारी ज़िंदगी का
हमारे नबी का अमल है, और यहाँ हमें करना है काम। इसका मतलब हम नबी के ख़िलाफ़ करेंगे कि हम शादी नहीं करूँगा, तो हमें तो नबी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो हम कैसे कहते हैं कि शादी नहीं करूँगा? हमारे प्यारे नबी ने कहा कि हदीस है, अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत है। बाकी सुन्नतें तो मैंने बहुत हैं, सब सारी सुन्नत ज़िंदगी में जो भी अमल है सुन्नत है, लेकिन आपने ख़ास तौर से बताया निकाह मेरी सुन्नत है। अब हमें इन चीज़ों में गौर करना है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों, अपना सही हदीसों की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान को समझो, तर्जुमे के साथ कुरान को कुरान पे अमल करो। कुरान का अल्लाह के एक तरीके से अल्लाह से बात है। कुरान का मतलब ये सीधा अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी अपने, तो जिससे अल्लाह से बात होगी, इसीलिए कहते हैं कुरान के बाद दुआ मांगो तो जल्दी कबूल होती है। भाई कुरान का मतलब जो है आप सीधे अल्लाह से मिल गए जा करके, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मिल गया जा करके। कुरान पढ़ने का मतलब है कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का। दुनिया की सारी किताबें समझ के लिए पढ़ी जाती हैं, कुरान है उन्हें हमने रट्टू तोता बना दिया है रटने के लिए पढ़ते हैं कुरान। दुनिया की किताबें तो समझ के लिए पढ़ी जाती हैं, लेकिन हमने कुरान को रट्टू तोता, या लमून तालिमून या लमून तालिमून या लमून तालिमून ये कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कुरान को। कुरान को उठा के तो ताकों में रख दिया और अपनी अपनी किताबें ले आए, उनको सुना रहे हैं बुजुर्गों के। वो टांग उठा के करते थे, वो करते थे, वो लेट के करते थे, वो हवा में करते थे, वो फलाना करते थे। भाई कहाँ है? कम से कम सही रास्ते पे आ जाओ मेरे भाइयों। दुनिया में इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई है, वो अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं है मोमिनों पे, अल्लाह रहम करने वाला है। ये सब हमारे अमल हैं। जो दुनिया में जो हो रहा है, जो भी ज़िल्लत हो रही है, जो भी रुसवाई हो रही है, जो भी मार काट हो रही है, वो हमारे अमल हैं। अभी भी आ जाओ, वापस आ जाओ, अल्लाह से रुजू कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह के सामने गिर जाओ, झुक जाओ ताकि अल्लाह ताला रहम करे। नूह अलैहिस्सलाम, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अज़ाब देखा तो सब जंगल में जा कर के अपने जानवरों को भी ले गए और सिजदे में पड़ गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो अल्लाह ने अज़ाब टाल दिया। और हमारे ऊपर अज़ाब सर पे खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ना तो हम मस्जिदों में रुजू कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ना गिड़गिड़ा रहे हैं। हम मतलब दुनिया भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। तो मेरे भाई अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है मेरे भाई। अपने अभी भी वक्त है, मस्जिदों में चले जाओ और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है।